Big conversation I want to have with all of you tonight. And viewers, it's a very important time in our war against COVID. We told you just yesterday, we may be staring at a situation where the cases can start peaking for most of the states and in the country in the first week of September. Now, as the number of cases are peaking, and once we cross that, can we go down a road of recovery? As the number of cases go a peak, it clashes with our festival season. This is now starting tonight. A series of festivals will begin in this country, across the country, across states, different kinds of festivals over the next several months. This is usually the time we all go out together as a family, with our friends, with our close ones. We go shopping, we go visiting our family members from one home to the other. There are processions which are carried out. It's just a big festival season. Can we do that this time? Of course not. We cannot have it like any other year. But to what extent can the festivities be allowed? That's going to be one big question. Conversation on that has already begun as we prepare ourselves for Ganesh Chaturthi, which will be observed across the country. The other aspect is, should the celebration of festivals actually just be made a private affair? You can do what you want, follow the customs, the traditions, figure out a new way of doing it inside your own homes, maintain social distancing, don't step out and convert into a crowd. The third question that I want to ask is, will this test our discipline? How disciplined can we be with social distancing, with our mask and our sanitizers and our gloves during the festival time? Very, very important. I'll give you one example, and I'm going to pull up the pictures that we got from Mumbai today. From one of the most famous flower markets, fresh vegetable and fresh flower markets here in Mumbai. A day before Ganesh festival begins, look at the crowd. Just look at the crowd on the streets. This is us failing in our COVID discipline on day one of the festival season. We cannot afford to do this. Yes, we want to go out, buy the necessary ingredients required for the preparations to bring the idol home, to set up the idol at home, to host Ganpati at home. We need to figure out how we will immerse the idol without carrying out a big procession, reaching the seaside or the lakeside. We have to find those alternatives. But if we begin to let our guard down like people did in this Mumbai market today, then we are in for big trouble, viewers. Over the next 45 minutes, 1 hour, we are going to take your calls as well. You tell us how you are going to celebrate this festival, but maintain your COVID discipline. Let's set the right example tonight. Let's have a conversation of how we can do it differently and still follow our tradition, our practices, our culture, and celebrate with our loved ones. Let's find new innovative ways of doing that. Let's look at the busy calendar. Ganesh Chaturthi starts tonight, tomorrow morning. Muharram on 29th of August. Onam on 31st of August. Navratri begins from 17th of October. Durga Puja begins on 22nd of October. Dasera on 25th of October. Before Dasera, of course, you have this whole, Ram Leela that goes on across the cities of North India. People out on the streets watching it. I don't know if that will be allowed this time. Ganesh Pandals have not been allowed in most of the cities. Eid-e-Milad on 29th of October. Diwali on 14th of November. Chhat Puja on 20th of November. Christmas on 25th of December. And of course, then in January, we also have Pongal and Makar Sankranti. It's a busy festival calendar time. But it's also a time right now where we have our maximum cases. It's a tightrope to walk. How do we do that? Let's talk. Conversation. We are guests joining us right now. Rahul Ishwar, social activist. I've got Dr. Pasricha, retired DGP of Maharashtra. Dr. Dilip Malvankar, director of the Indian Institute of Public Health and a member of the COVID Task Force in Gujarat. Saswata Basu, General Secretary for Forum for Durgotsav,
and Bala Sahab Kamble, President for the Lal Bagh Chauraja Committee with me this evening. Bala Sahab Kamble, आपसे शुरू करते हैं कि लाल बाग का जो गणेश उत्सव रहता है वो मुंबई का सबसे बड़ा, सबसे फेमस होता है, लेकिन इस बार फेस्टिविटीज़ वैसी नहीं होंगी। जब आप लोग ने ये डिसीजन लिया तो कैसे डिस्कस किया, क्या सोचा और कैसे डिसाइड किया कि इस बार क्या करेंगे? नमस्कार। लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल इस साल का ये हमारा 87th ईयर है और लास्ट 87th ईयर में ये लालबाग का राजा गणेशोत्सव मंडल का भी ये फर्स्ट निर्णय ऐसा है कि इस बार हम जो फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं वो अलग तरह से फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं मार्च 2020 से पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो दिन ब दिन बढ़ते आ रहा है। इसमें ज़्यादा महाराष्ट्र और मुंबई में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कोरोना वायरस का है। हमारे यहाँ मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये सारा माहौल देख के मार्च महीने से हमारे मीटिंग्स हो रही थी इसके बारे में। लालबाग का राजा जो लास्ट 87th ईयर से यहाँ पे गणेशोत्सव हम लोग मनाते हैं, ये लालबाग का राजा के दर्शन के लिए जो भाविक आते हैं ये दुनिया भर से लोग आते हैं। मुंबई, महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लाखों करोड़ों भाविक यहाँ पे 10 दिन में आते हैं। बहुत ज़्यादा पैमाने में भाविकों की संख्या यहाँ पे रहती है। और कोरोना को जो वायरस का इफ़ेक्ट है वो भी जैसे आदमी की संख्या बढ़ती है वो रश के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से उसका संसर्ग होता है। और ये सारे बात मद्देनज़र रखते हुए हमने इस बार, इस साल में एक लोक कल्याणकारी ऐसा निर्णय ले लिया। हमारे 2-3 महीने में इस पर हमारे सब कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे जो एडवाइज़र्स है मंडल के, हितचिंतक है, हमारे मेंबर्स हैं, ये सारे लोगों से हमारी बातचीत हो गई। एक बार हमने हमारे एक एनुअल जनरल मीटिंग ले ली, ऑनलाइन मीटिंग ले ली। उसमें हमारे सीनियर्स लोग प्रेजेंट थे और सारे लोगों के पूरी बातचीत करते, पूरी डिस्कस करते, सबका निर्णय का एक ही निर्णय पे आ गए कि इस बार हमें बड़े दुख के साथ ये निर्णय लेना पड़ा कि लालबाग का राजा का मूर्ति की प्रतिष्ठापना यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से लोगों को पेशेंट की संख्या बढ़ती है और भाविकों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर किसी भी हाल में हम अगर गणेशोत्सव मनाते हैं तो वो कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो फैलाव हो सकता है। और ये सारा निर्णय उसी मीटिंग में हमने तय किया। ये 30 जून को हमारी मीटिंग हुई थी और उसके बारे में अगर गणेशोत्सव नहीं करना है तो उसके बावजूद यहाँ पे आरोग्य उत्सव होगा। और ये आरोग्य उत्सव के अंदर हम लोग प्लाज्मा डोनेशन कैंप अरेंज किया है, ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है, ताकि प्लाज्मा डोनेशन की आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा नीड है। कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उनको अगर प्लाज्मा हम लोग डोनेट कर दे तो वो कोरोना वायरस के पेशेंट अच्छे हो जाते, तुरंत अच्छे हो जाते। तो यही एक पॉइंट हमने नज़र में के सामने रख के यहाँ पे हमने प्लाज्मा डोनेशन 3 अगस्त से स्टार्ट किया और आज हमारे यहाँ 125 प्लाज्मा डोनर्स ने अपना प्लाज्मा केईएम हॉस्पिटल में डोनेट किया हमारे मंडल की वजह से। हाँ जी कामले जी, ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ये जिस दिन मैंने सुना उसी दिन मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। देश भर को ये पता होना चाहिए, होल कंट्री शुड नो that one of the biggest Ganpati pandals, the entire committee, they have been doing this for 70 years. This time were the first ones to announce they will not organize the grand event open to lakhs of people. Instead they will set up a donation camp, एक डोनेशन कैंप ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए। ये इस साल तरीका है जो गणपति फेस्टिवल को ऑब्जर्व करने का। पर बाला साहब कामले जी, जब ये डिस्कशन चल रहा था जैसे आपने कहा, तो क्या कोई लोग थे जिन्होंने कहा कि लेकिन हम 70 साल से यही कर रहे हैं, कैसे हो सकता है इस बार नहीं करे, अच्छा नहीं लगेगा, ये तो हर साल का हमारा ट्रेडिशन है। ऐसे कोई जो लोगों ने बात उठाया तो आपने उनको कैसे समझाया? नहीं, ठीक है, कैसे हर एक मंडल में बहुत सारे डिफरेंट थिंकिंग के लोग रहते हैं, ऐसा भी हुआ था। लेकिन उसकी जो संख्या थी वो बड़ी कम लोगों की थी। हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ऐसी थी कि अपने मुंबई शहर एक गर्दी का शहर है, यहाँ पे लोगों की संख्या, भाविकों की संख्या ज़्यादा रहती है। और ऐसे हालत में अगर कोरोना का फैलाव केवल गणेश फेस्टिवल के माध्यम से अगर होता है तो समाज के लिए वो अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है।
तो देश की सेवा करना ही, इस समाज की सेवा करना ही बापा की या भगवान की सेवा है। देश ही हमारा भगवान है, ये एक वचन हमने मन में ठान ली और वही वचन को हमने एग्जीक्यूट करने के लिए हमने ये निर्णय ले लिया। और इसके बारे में हमारे जो मंडल के सारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं, हमारे जो सीनियर ऑफिस बेरर्स थे, जो अभी हमारे जैसे सलाहकार करके, मार्गदर्शक करके हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने भी हमारा ये निर्णय का स्वागत किया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारा निर्णय बराबर है, क्योंकि हमारे गणपति बप्पा के लिए, लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए यहाँ की जो संख्या आती है, ये 10 दिन में कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा संख्या आती है। अगर हमने गणपति बप्पा यहाँ पे बिठाते हैं, तो अगर सपोज हर दिन में 15 लाख, 10 दिन में 1.5 करोड़, ये जो हमारा रेशियो है, तो दिन में अगर 1% अगर लोग आते हैं तो भी यहाँ पे कम से कम 1 या 1.5 लाख लोग आते थे। तो इसके बारे में 1.5 लाख अगर लोग आते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है, कोरोना का जो फैला होने का जो रिज़ल्ट होगा, वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे कोरोना के पेशेंट बढ़ सकते थे, इसलिए सारे लोगों ने हमारे ये निर्णय के स्वागत किया, हमारे साथ रहे। जो कुछ लोग बोले कि ट्रेडिशन के बारे में, तो उनको भी बाद में ये सब पता चला कि आज के पैमाने में अभी आज का भी जो हमारा मुंबई महाराष्ट्र का जो डिजिट है, जो संख्या है कोरोना पेशेंट की, वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर है। तो लोगों को अभी सब रियलाइज़ हो गया कि जो लाल बाग का राजा गणेशोत्सव मंडल ने निर्णय ले लिया है, वो आज के ज़माने में वो सही निर्णय है, और इसके लिए बहुत सारे लोग हमारे निर्णय को अप्रिशिएट भी करते हैं। आपके निर्णय को भी अप्रिशिएट किया, और आपके निर्णय से इंस्पायर होके बहुत और भी जो पंडाल से मुंबई में और बाकी शहरों में, महाराष्ट्र में, सबने ऐसा सोचा कि हाँ, ये नहीं करना चाहिए। तो कामले जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।